In this class, we are going to study about the various kinds of species and area relationship that occur, or how the number of species varies according to the area or according to the explored area that has been explored scientifically, to find out what species and what is the number of the species that are living in a certain area. And thereafter we'll study about the biodiversity conservation methods, and also why we are losing our biodiversity, what are the causes that is leading to the loss of biodiversity. So we are going to study those methods. So first of all, we'll study about the species area relationship, and here we have to study about a scientist whose name is Alexander von Humboldt. So he was a German naturalist and he explored lots of places, and he found that as you increase the amount of explored area, the number of species or the richness species, that is the number of species per unit area of a land or anything. So per unit area of land, the number of species that are found do increase with the increase in the area of land that has been explored, but still it goes up to a certain limit. यानी कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ स्पीशीज को इंक्रीज करना चाहें अपने एक्सप्लोर्ड एरिया के थ्रू, तो ये जो नंबर ऑफ स्पीशीज है पर एरिया जो या पर यूनिट एरिया से हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो एक लिमिट तक ही होगा. लेकिन एक सर्टेन एरिया से बड़े एरिया को एक्सप्लोर करने के बाद ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं. So this is what he observed, that is Alexander von Humboldt observed. So he observed that the species richness increased in explored area, but only up to a certain limit. So species richness increase करता है, लेकिन किसके साथ? एक्सप्लोर्ड एरिया के साथ इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक, अप टू अ सर्टेन लिमिट. ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा एरिया को एक्सप्लोर करते जाओ और न्यू स्पीशीज आते जाएंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ लैंड एरिया या फिर अमाउंट ऑफ लैंड एरिया यू हैव एक्सप्लोर्ड, इफ दैट इंक्रीजेस आल्सो, एज यू इंक्रीज द एक्सप्लोर्ड एरिया, द नंबर ऑफ स्पीशीज विल इंक्रीज, बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट. नाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस स्टेटमेंट मीन्स, we have to see a logarithmic scale or a rectangular hyperbola graph. So this is a graph that has been drawn between for area, that is area of the explored part, and the species richness. So what is species richness? It is the number of species or the diversity of species that is found in an area. So if we dot a rectangular hyperbola equation, then S here is the species diversity, C is the y-intercept, that is where this intercept on the y-axis, and this A is the area. So if we convert it to the logarithmic scale, so this was the rectangular hyperbola equation, and this is the logarithmic or the straight line equation. So we have log S is equal to log C plus Z log A. Here S means that we have already seen, that is species richness. Here C means the y-intercept, where this line will touch the y-axis. And then we have Z. So Z is important. Normally in a normal equation, this Z would mean the slope of the line, but here this Z signifies something else. This Z signifies regression coefficient, and this is very important over here. ये जो Z होता है ना, ये हमें नॉर्मली स्पीशीज के बारे में बताता है कि कहाँ पर कितने उसके स्पीशीज हो सकते हैं, और Z का जो स्लोप है ये हमें डिनोट करने में हेल्प करता है कि वहाँ पे स्पीशीज का रिचनेस क्या है या फिर नंबर ऑफ स्पीशीज क्या है. सो अगर हम लॉगरिथमिक स्केल की ग्राफ ड्रॉ करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन होता है, और यहाँ पे ऑब्वियसली A इज द एरिया. सो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो अगर हम जो Z की वैल्यू है वो नॉर्मली हमारी आती है 0.1 to 0.2 के बीच में. यानी कि किसी भी नॉर्मल छोटे मोटे एरिया में या किसी बड़े एरिया में भी अगर हम एक्सप्लोरेशन करें तो वहां पर हमें जो Z की वैल्यू मिलती है वो 0.1 to 0.2 ही मिलती है. फॉर एग्जांपल अगर हम गुजरात में मैंगो डाइवर्सिटी की बात करें या शिमला में एप्पल डाइवर्सिटी की बात करें, तो यहाँ पर 0.1 to 0.2 के बीच में ही वेरिएशन होता है जो हमारा स्पीशीज का जो Z वैल्यू है यहाँ पर. लेकिन अगर हम पूरे कॉन्टिनेंट की बात करें, एशिया और अफ्रीका की बात करें, या एशिया यूरोप या यूरोप नॉर्थ अमेरिका, या नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, या साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो अगर हम ऐसे कॉन्टिनेंट्स के बीच में Z वैल्यू देखते हैं तो Z का जो वैल्यू है वो 0.6 से लेकर के 1.2 तक होता है.
सो ये होता है z का वैल्यू कॉन्टिनेंट्स के लिए, लेकिन ये होता है z का वैल्यू नॉर्मली एक सर्टेन एरिया के लिए। सो दोनों में ये डिफरेंस है। तो z की वैल्यू अगर आप कॉन्टिनेंट को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा स्पीशीज पाए जाएंगे, तो इसीलिए z की वैल्यू यहाँ पर काफी ज्यादा होती है। z अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन z इज द स्लोप, दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन विच यू मस्ट हैव स्टडीड इन फिजिक्स और मैथ्स ऑल्सो। और जो यहाँ पे है z का मतलब है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। नाउ वी कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। आखिर ये जो बायोडाइवर्सिटी है इकोसिस्टम के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? अगर बायोडाइवर्सिटी कम हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे काम किया और इसको एक्सप्लेन करने के लिए पॉल एरलिख ने एक नॉर्मल सा रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया था। सो ही गेव दिस रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस to explain the importance of different species in a ecosystem. So what he said that if in a plane that is flying, if we pull out certain parts and rivets, then the parts, if we pull out certain parts which are normally related to the seats, then it won't have much effect. But if we pull out the parts related to the wings, then it could be very drastic. Likewise is the case with the ecosystem. यहाँ पर इकोसिस्टम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्पीशीज होते हैं। कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं तो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ स्पीशीज कम इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस केस में क्या होता है नॉर्मली कि अगर हमने स्पीशीज का बायोडाइवर्सिटी कम कर दिया किसी भी इकोसिस्टम में, तो इकोसिस्टम में इम्बैलेंस आ जाएगा, इकोसिस्टम में ड्रास्टिक चेंजेस आ सकते हैं। वहाँ पर टोटली ऑटोट्रोप्स, हेटेरोट्रोप्स, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, इन सभी के बीच इम्बैलेंस आ जाएगा। तो इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और जितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रहेगा इकोसिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। सो रिमेंबर दिस थिंग, द नंबर ऑफ स्पीशीज एज इट इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। सो बायोडाइवर्सिटी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी अगर कम होती है तो इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है तो इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है। अब एक साइंटिस्ट है, his name was Tillman also explored this thing and he observed that is in certain ecosystem where the biodiversity is more, the seasonal fluctuation or the annual fluctuation in productivity of those ecosystems was lesser। यानी कि जहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है इकोसिस्टम के अंदर, वहां पर प्रोडक्टिविटी में फ्लक्चुएशन काफी कम होता है। Now we come to the causes of biodiversity losses. So these are the very common 4 causes that you must have studied about. So the first is habitat loss and fragmentation. So it is pretty simple. जानवर जहाँ रह रहा है अगर उसका हैबिटेट छिन जाएगा तो ऑब्वियसली वो जानवर या फिर प्लांट या फिर फंजाई या कोई भी स्पीशीज हो, अगर उसका हैबिटेट यानी कि जहाँ वो रह रहा है वो हैबिटेट ही उससे अगर अलग हो जाए, छिन जाए, तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो हैबिटेट लॉस की वजह से विलुप्त हो जाएगा यानी कि एक्सटिंक्ट हो जाएगा। एंड अब फ्रैगमेंटेशन की बात करें तो फ्रैगमेंटेशन के केस में एक बहुत से बड़े एरिया में अगर बहुत सारे माइनर ह्यूमन सेटलमेंट्स या पैचेस बन जाते हैं तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है, बहुत लार्ज पैच ऑफ लैंड चाहिए होता है। तो वैसे एनिमल्स बहुत ही बुरी तरह अफेक्टेड होते हैं जब उनका हैबिटेट में फ्रैगमेंटेशन होता है, यानी कि बड़ा सा हैबिटेट था उस पर बीच बीच में ब्रेकेज आ गया, बीच बीच में ह्यूमन सेटलमेंट्स आ गए या किसी और कारण से वहाँ पे क्रॉपलैंड्स हो गए या कुछ भी हो गया, लेकिन उनका जो हैबिटेट था वो फ्रैगमेंटेड हो गया। और हैबिटेट लॉस यानी कि वहाँ पे टोटल हैबिटेट लॉस हो गया, तो वहाँ तो ऑब्वियसली डेथ होगा ही या एक्सटिंक्शन होगा ही स्पीशीज का। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी में जो हैबिटेट लॉस हो रहा है, इसमें हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की बात कर सकते हैं। दैट इज यहाँ पर हॉटस्पॉट वो जगह होते हैं जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा स्पीशीज पाई जाते हैं एक बहुत ही छोटे से एरिया में। तो जो हॉटस्पॉट्स होते हैं उन हॉटस्पॉट्स में नॉर्मली उनका जो नंबर है अभी के टाइम पे वो 34 है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द नंबर ऑफ हॉटस्पॉट एट प्रेजेंट इज अराउंड 34। सो दीज हॉटस्पॉट्स आर साइट्स ऑफ ग्रेट और डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी और ह्यूज बायोडाइवर्सिटी। तो इन हॉटस्पॉट्स में अमेजॉन रेन फॉरेस्ट भी है, इंडिया में जो वेस्टर्न घाट्स हैं या इंडो बर्मा का जो एरिया है या जो हिमालयन एरिया है इंडिया का, सो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पीशीज पाई जाते हैं। दीज आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। सो हॉटस्पॉट्स में अगर हम कंजर्व करते हैं तो वो काफ़ी हद तक स्पीशीज को कंजर्व करने में हमारी मदद कर सकता है। नाउ वी कम टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो ह्यूमंस ने बहुत सारी स्पीशीज का ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया है जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स खत्म हो गए, जैसे स्टेलर सी काऊ या फिर पैसेंजर पिजन। तो इन सभी का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया गया जिससे कि बहुत सारे स्पीशीज खत्म हो गए।
लाइकवाइज अभी बहुत सारे स्पीशीज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन पर पहुंच चुके हैं। फॉर एग्जांपल जो भी मरीन फिशेस होती हैं उनमें बहुत सारी फिशेज जिनका कि बहुत ज़्यादा फिशिंग किया जा रहा है वो एक्सटिंक्शन के पास पहुंच चुकी हैं। लाइकवाइज जो रिवर्स में बहुत सारी जो फ्रेश वाटर फिशेज होती है उनका इतना ज़्यादा फिशिंग किया गया है कि वो भी अब एक्सटिंक्शन के पास है। नाउ द थर्ड इज एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स। तो ह्यूमंस की आदत होती है कि नेचर के साथ हम लोग खेलते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने नेचर के साथ खेला है, दैट इज हमने एक जगह पे कहीं और का स्पीशीज लाके इंट्रोड्यूस कर दिया है, जैसे कि वाटर ह्यासिंथ हो गया, लाइकवाइज नाइल पर्च हो गया। तो इसकी तरह के बहुत सारे स्पीशीज जैसे पार्थेनियम या फिर लैंटेनम, तो ऐसे स्पीशीज जो कि उस एरिया के नहीं है लेकिन कहीं बाहर से लाके वहां पर उसे लगाया गया है या किसी तरीके से उसे लाया गया है, तो उस स्पीशीज को कहते हैं एलियन स्पीशीज इन्वेजन। तो उससे क्या होता है कि वहां पे जो उस एरिया में पहले से रह रहा है स्पीशीज है वो डैमेज हो जाते हैं। सो दिस इज व्हाट इज एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स। तो एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स में क्या होता है कि एक ऐसा प्रेडेटर या एक ऐसा जानवर या प्लांट आ जाता है जो कि वहां के ओरिजिनल प्लांट्स और एनिमल्स को किल कर सकता है या फिर उसकी वजह से वो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उन पे और वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। नाउ वी कम टू द को एक्सटिंक्शन। अब बहुत ही सारे स्पीशीज में इतना इंटीमेट कनेक्शन होता है कि एक दूसरे के बिना वो लोग नहीं रह सकते हैं। दैट इज फिग और वैस्प का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर फिग खत्म हो जाए तो वैस्प खत्म, वैस्प खत्म हो जाए तो फिग खत्म। सो बहुत सारे स्पीशीज के बीच में ऐसा इंट्रिकेट कनेक्शन होता है कि अगर एक का लॉस हुआ तो बाकी सारे भी खत्म हो जाएंगे। तो बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि एक सर्टेन प्रेडेटर होता है तो वो बहुत सारे स्पीशीज को कंट्रोल में रखता है। जब वो प्रेडेटर वहां से हट जाता है तो वो स्पीशीज आपस में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। सो को एक्सटिंक्शन में क्या होता है कि जब एक स्पीशीज का एक्सटिंक्शन होता है तो उससे रिलेटेड या उस पर डिपेंडेंट वो सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो दैट इज व्हाट इज को एक्सटिंक्शन। सो को एक्सटिंक्शन और इन चारों को मिलाकर के इविल क्वार्टेट कहा जाता है, यानी कि इन चारों के जो कॉजेज हैं हम कॉमनली कहते हैं इविल क्वार्टेट, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी के लॉस के पीछे इन्हीं चारों का सबसे मेन रोल होता है। नाउ वी कम टू द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने की हमें जरूरत ही क्या है? आखिर हम क्यों बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें, इतने सारे स्पीशीज को कंजर्व करने का सोचे? तो पहली चीज हमने देखा था कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि पॉल एलरी के अनुसार जितना ज्यादा स्पीशीज होंगे किसी भी इकोसिस्टम में वो ज्यादा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो वो तो नॉर्मल सी बात हो गई इकोसिस्टम के लिए, लेकिन अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि हमारे लिए क्या फायदेमंद है और क्या नहीं, तो उसके बेसिस से हम बात कर सकते हैं नैरोली और ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। नैरोली और ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का हम बात कर सकते हैं। तो नैरोली और ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का मतलब होता है कि हम नैरोली यूटिलिटेरियन मेथड्स में हम या फिर वेज में हम ये सोच सकते हैं कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिसके लिए हम डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। सो दोज थिंग्स वुड बी कॉल्ड एज नैरोली यूटिलिटेरियन अप्रोचेस। सो वहाँ पर जैसे कि हम फायरवुड के लिए या बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स के लिए या फूड के लिए या फिर वुड के लिए बहुत सारी चीज़ों पे डायरेक्टली फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। तो वैसे केस में हम कह सकते हैं कि वो जो बायोडाइवर्सिटी रहेगा हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि हम ये सारे रिसोर्सेज वहाँ से लेते हैं। अगर हम ब्रॉडली यूटिलिटेरियन की बात करें तो इनमें वो मेथड्स होंगे जो कि नेचर हमारे लिए प्रोवाइड करती है। जैसे कि बायोडाइवर्सिटी की वजह से जो अच्छा इकोसिस्टम होता है वो बहुत ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। उसी की तरह हम अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की बात कर सकते हैं। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट अर्थ का 20% अप्रॉक्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो हमें ब्रॉडली यूटिलिटेरियन मेथड्स में या फिर वेज हमें क्या है कि नेचर हमें ऑक्सीजन देता है। लाइकवाइज हम बात कर सकते हैं पॉलिनेटर के लिए। तो ह्यूमंस जो होते हैं अगर खुद से पॉलिनेट करें तो सारे प्लांट्स को तो ऑब्वियसली पॉलिनेट नहीं कर सकते हैं, तो नेचर हमारे लिए प्लांट्स में पॉलिनेशन भी कर देती है। इसके अलावा नेचर हमारे लिए बहुत कुछ करती है, बहुत सारे सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है। उसके अलावा एथिकल रीजंस भी होते हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की, कि अगर हम इंटेलिजेंट हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम पूरे स्पीशीज को खत्म कर दें। We want the other species to survive on earth. We want the species or we want the different species to survive, not just let them become extinct because of our needs. So हमारे लिए ये moral responsibility है हमारी, यानी कि ethical responsibility है हमारी कि हम बाकी species को extinct ना होने दें, या फिर हमारी एक्टिविटी से अगर वो extinct हो रहे हैं तो हम अपनी एक्टिविटी को stop या कम करें। Now we come to in situ and ex situ conservation। तो हम conservation कैसे कर सकते हैं?
तो इन सीटू का मतलब होता है ऑन साइट, एक्स सीटू का मतलब होता है ऑफ साइट। तो इन सीटू का मतलब होता है कि जो प्लांट या एनिमल या जो भी स्पीशीज को हम सेव करना चाहते हैं वो उसी जगह पे उसे बचाया जाए। तो इन सीटू कंजर्वेशन मेथड के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ ये, या फिर हम नेचुरल पार्क्स की बात कर सकते हैं, या बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात कर सकते हैं। तो इन सभी की मदद से हम जो स्पीशीज हैं उनको ऑन साइट प्रिजर्व कर सकते हैं। अब हम एक्स साइट की बात, एक्स सीटू साइट की बात करें तो आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में ज़ूलॉजिकल पार्क्स, बोटैनिकल गार्डन्स और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। सो इन तीनों की मदद से जो स्पीशीज जहां पर खत्म हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, उन्हें लाकर हम एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखते हैं, यानी कि ज़ूलॉजिकल पार्क हो गया या बोटैनिकल गार्डन है या वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। तो इनमें हम उन ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखते हैं, तो इस वजह से वहां पर हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब इन सीटू में कुछ और है, जैसे कि सेक्रेड ग्रुप्स कहते हैं। तो बहुत सारे कल्चर्स में प्लांट्स को बहुत प्योर माना गया या प्लांट्स को बहुत ही ज़्यादा वर्शिप के एबल माना गया है। सो इस वजह से वैसे कल्चर्स में प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है। तो उस जगह पे जहाँ पे प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं उसे कहते हैं सेक्रेड ग्रुव्स। तो सेक्रेड ग्रुव्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि खासी एंड जैंतिया हिल्स जो कि मेघालय के हो गए हैं, या फिर अरावली हिल्स हैं राजस्थान में, या इंडिया के जो कर्नाटका के वेस्टर्न घाट्स हैं, महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स हैं। सो ऐसे जगहों को हम कह सकते हैं कि इनमें हम सेक्रेड ग्रुव्स होते हैं, यानी कि वहां पर उन ऑर्गेनिजम्स को के लिए वो प्लेस सेक्रेड है, तो उसे डिस्टर्ब ना किया जाए, उसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो वो भी सेक्रेड ग्रुव्स भी आ जाएंगे हमारे इन सीटू कंजर्वेशन में। अब पूरे वर्ल्ड ने धीरे धीरे ये रियलाइज किया कि हम अपना बायोडाइवर्सिटी खोते जा रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी अगर हम खोते जा रहे हैं, एक सर्टेन टाइम के बाद ऐसा आएगा कि हमारे अर्थ पे अगले 100 ईयर्स के अंदर में 50% स्पीशीज खत्म हो जाएंगे। तो इतना सीवियर लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करने के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए अर्थ समिट किया गया था बैक इन 1992 इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील। तो यहाँ पे अर्थ समिट में का जो मेन मोटिव था वो था कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करना है या फिर कैसे उसे प्रोटेक्ट करना है ना। उसी का एक फॉलो अप था जो कि 2002 में हुआ था, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें ये डिस्कस हुआ था कि कैसे हम ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज है उसको ऐसे वे में करें जिससे कि हमारी बेनिफिशियल एक्टिविटीज भी हो जाए और बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व हो जाए। सो वर्ल्ड समिट में और बहुत सारे कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, अप्रोक्सीमेटली 190 कंट्रीज। So they agreed that by 2010 we want to reduce certain activities which lead to the loss of biodiversity. So ये दोनों जो वर्ल्ड लेवल के इवेंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, इनमें यही याद रखना है कि ये कब हुए थे और उनका नाम क्या था और कहाँ हुए थे। That is Earth Summit took place in Rio de Janeiro in 1992 in Brazil, and World Summit took place in Johannesburg in South Africa. It is in Johannesburg in South Africa, and it took place in 2002. So this is a quick summary of those topics that we have just studied, that is species area relationship and biodiversity conservation or loss of biodiversity. So now we have completed this chapter. It was a very quick summary. I know I have not gone into details because obviously it is a crash course class. So we have now completed this chapter. This was the last topic, and we just have to remember the main bullet points over here, and also what are the biological parks or national parks. So such things we have to remember, and these things are normally data based. There is nothing to explain, nothing to understand. The only thing here is to remember, and you have to remember the dates or the national parks or the biosphere reserves and something like that. So now we have completed whatever be the main topics of this chapter. We have now completed that.